बच्चों अब आज हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर सम मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. These modes of heat transfer cannot operate between bodies separated by a distance in vacuum. But the earth does receive heat from the sun across a huge distance. तो बच्चों सन से हीट जो है वो धरती पर कैसे आ गई जब बीच में तो वैक्यूम था. तो इसका मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन से तो नहीं आ रही. देयर इज सम अदर वे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सन एंड द earth. Let us see. Similarly, we quickly feel the warmth of the air nearby even though air conducts poorly and before convection takes some time to set in. ओके आग के पास बैठते हो तो बहुत जल्दी से क्विकली आपको हीट महसूस होने लगती है, जबकि कंडक्शन तो नहीं हो सकता एयर के थ्रू, वो बहुत पुअर कंडक्टर है. और जो कन्वेक्शन है उसमें कुछ टाइम लगता है, आप तो एकदम इंस्टेंटली हीट फील करते हो. There is something else. The third mechanism for heat transfer needs no medium. It is called radiation. And the energy so transferred by the electromagnetic waves is called radiant energy. In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space and time. Like any wave, electromagnetic waves can have different wavelengths and can travel in vacuum with the same speed, namely the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सबका स्पीड यही होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second. यही रेडिएशन है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यू विल लर्न दीज मैटर in more detail later, but you 12th में पढ़ोगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. but you now know why heat transfer by radiation does not need any medium and why it is so fast. This is how heat is transferred to the earth from the sun through empty space. All bodies emit radiant energy, whether they are solid, liquid or gases. सब में से ही निकलती हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, लाइक रेडिएशन बाय अ रेड हॉट आयरन और लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प, इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन. इसी को थर्मल रेडिएशन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है ना. व्हेन दिस थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अदर बॉडीज़, क्या होता है बच्चों, इट इज़ पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली एब्जॉर्ब्ड. The amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of the body. We find that black body absorb and emit radiant energy better than bodies of light colors. This fact finds many applications in our daily life. We wear white cloth or light colored cloth in summer so that they absorb the least heat from the sun. However, during winter, we use dark colored clothes which absorb heat from the sun and keep our body warm. The bottoms of utensils for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and transfer it to the vegetables to be cooked. Similarly, a Dewar flask or thermos bottle is a device to minimize heat transfer between the contents of the bottle and the outside. It consists of a double-walled glass vessel with the inner and outer walls coated with silver. Radiation from the inner wall is reflected back to the contents of the bottle, है ना. वापस से सिल्वर से रिफ्लेक्शन होके जो हीट है वापस थर्मस में ही चल जाएगी, तो आपका जो कंटेंट है बॉटल का वो गर्म ही रहता है. द आउटर वॉल similarly reflects back any incoming radiation. The space between the walls is evacuated, क्यों, to reduce the conduction and convection losses, and the flask is supported on an insulator like cork. The device is therefore useful for preventing hot contents like milk, tea from getting cold, or alternatively to store cold content like ice. Insulator बता दिया ना आपने. अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन.
We have so far not mentioned the wavelength content of thermal radiation. अभी तक हमने कोई बात नहीं करी ना कि जो थर्मल रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है. The important thing about thermal radiation at any temperature is that it is not of one wavelength but has a continuous spectrum from the small to the long wavelengths. बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है. स्पीड तो सबकी सेम है लेकिन वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. तो जो थर्मल रेडिएशन है ना उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स की जो रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं. द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रेडिएशन हाउएवर वेरीज विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स. मतलब हर एक तरह की वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है. ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होगी तो एनर्जी कम होगी, छोटी वेवलेंथ होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी. है ना, पढ़ा हुआ है ना आपने. ई इक्वल टू क्या था, एच सी अपॉन लेमडा. लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ द वेव. फिगर में आपको दिखाया गया है गिव्स द एक्सपेरिमेंटल कर्व्स फॉर रेडिएशन एनर्जी per unit area per unit wavelength emitted by a black body versus wavelength for different temperature. देखो अलग अलग टेम्परेचर में सनलाइट आ रही है 6000 केल्विन की सनलाइट, है ना. इसकी जो वेवलेंथ की पीक है वो ऊपर जाके दिखाई नहीं है बुक में. आप लोअर टेम्परेचर वाले की देखो, जो आर्क है ना 3000 केल्विन पे, उसकी पीक देखो. पीक का मतलब है कि उसमें एक वेवलेंथ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा और बाकी जो वेवलेंथ है वो उस मैक्सिमम वेवलेंथ से या तो छोटी है या बड़ी है ना. तो पीक जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मिल रही है. कब, जब टेम्परेचर 3000 के है. अब अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बच्चों तो ये जो मैक्सिमम है ना लैम्डा का मैक्सिमम वो कम होता जाएगा. मतलब कम वेवलेंथ वाली वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा पीक पे होगी मैक्सिमम. मतलब उनकी एनर्जी मैक्सिमम है. क्यों एनर्जी मैक्सिमम? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है. अभी इसको और लॉ की फॉर्म में पढ़ेंगे. नोटिस दैट द वेवलेंथ लैम्डा एम फॉर विच एनर्जी इज़ द मैक्सिमम डिक्रीजेस मतलब लैम्डा तो कम होगी ना विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड टी इज़ गिवन बाय व्हाट इज़ नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ठीक है. अभी क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और उसको ग्राफ बनाया तो आपने देखा कि सब तरह की वेवलेंथ्स मिल रही है, छोटी बड़ी, लेकिन एक तरह की वेवलेंथ है जो मैक्सिमम मिल रही है. और वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है. क्यों? क्योंकि छोटी वेवलेंथ मतलब एनर्जी मोर. तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा एम और टी की जब आप प्रोडक्ट देखोगे अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लैम्डा कम होती गई ना तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा. और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल दी जा चुकी है. द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. दिस लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई द कलर ऑफ अ पीस ऑफ आयरन हीटेड इन अ हॉट फ्लेम फर्स्ट बिकम्स डल रेड. बच्चों आपने कभी आयरन को हीट होते हुए देखा है? सबसे पहले उसका कलर होता है लाल रंग का. ये लाल रंग जो वेवलेंथ होती है ना लंबी वेवलेंथ होती है क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है ना आपने, अभी आप बढ़ाते जा रहे हो टेम्परेचर. देन रेडिश येलो, उसके बाद वो किस में टर्न हो जाती है? रेडिश येलो में, येलो की तरफ मतलब छोटी वेवलेंथ. एंड देन लास्टली वाइट हॉट. वीन्स लॉ इज़ यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़. कैसे? देखो बच्चों, अगर आपके पास सेलेस्टियल बॉडी से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मान लीजिए आपको वेवलेंथ पता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, यही रहेगा 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. तो आप बच्चों सेलेस्टियल बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो, है ना, कांस्टेंट अपॉन लैम्डा करके. तो देखते हैं अभी सन का हम टेम्परेचर निकालते हैं. ये किसका एप्लीकेशन है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का. द मून, सन एंड द अदर स्टार्स. Light from the moon is found to have maximum intensity near the wavelength 14 micrometer. By Wien's law, the surface of the moon is estimated to have a temperature of 200 Kelvin. Solar radiation कैसे निकाला देख लिया बच्चों? लैम्डा की वैल्यू देखी 14 माइक्रोमीटर और कांस्टेंट में उसका डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 200 केल्विन टेम्परेचर. सोलर रेडिएशन हैज़ अ मैक्सिमम एट लैम्डा
कितना है उसका जो सन की रेडिएशन आ रही है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ किसकी मिलती है? 4753 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ की लाइट सबसे ज़्यादा होती है सन में, सन की जो लाइट आ रही है। इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर जो है वो T कितना हो गया? 6060 केल्विन। आ गया समझ में? क्योंकि आपके पास कांस्टेंट तो था ही। रिमेंबर दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन, नॉट इट्स इंटीरियर, है ना? ऐसा मत समझना कि इतना कम है टेम्परेचर, अंदर और भी बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स इज़ दैट दे आर यूनिवर्सल। क्यों यूनिवर्सल है? सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट ऑन द साइज, शेप और मटीरियल ऑफ द बॉडी, ब्लैक बॉडी। Attempts to explain black body radiation theoretically at the beginning of the 20th century spurred the quantum revolution in physics, as you will study in later courses. तो बच्चों पता लग गया आपको ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो ऐसे तो सारा ही मैटर जो है कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को इमिट करता है, लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और हर वेवलेंथ की लाइट को इमिट भी कर देती है। इसकी इमिशन पावर 1 मानी गई है ब्लैक बॉडीज़ की। 1 तो खैर किसी की नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ नहीं है, लेकिन 0.95 है किसकी? लैम्प ब्लैक की और ग्रेफाइट की। इनको बहुत अच्छी ब्लैक बॉडी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट इमिट कर देते हैं। अंडरस्टूड? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस विदाउट अ मीडियम, दैट मीन्स इन द वैक्यूम ऑल्सो। The total electromagnetic energy radiated by a body at absolute temperature T is proportional to its size. ठीक है? Its ability to radiate called emissivity. कितना वो रेडिएट कर सकती है बॉडी, उसको बोलते हैं उसकी इमिसिव पावर, है ना? द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू इट्स टेम्परेचर फॉर अ बॉडी विच इज़ अ परफेक्ट रेडिएटर, द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, इसको H से दिया जाता है। ये क्या है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। जैसे पावर होती है ना वर्क अपॉन टाइम, ऐसे ही एनर्जी अपॉन टाइम है। इसकी भी आपको यूनिट वही वॉट ही है, यूनिट पर एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम क्या है? H गिवन बाय A इज फॉर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर ये है आपका सिग्मा, सिग्मा एक कांस्टेंट है वही वाला स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन में। तो जो हीट इमिटेड है पर सेकेंड पर यूनिट टाइम वो किस फॉर्मूले से दी जाती है? इसी से कि वो एरिया पे डिपेंडेंट है, वो सिग्मा पे डिपेंडेंट है और वो टेम्परेचर की पावर 4 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Where A is the area, T is the absolute temperature of the body. This relation obtained experimentally by Stefan and later proved theoretically by Boltzmann is known as Stefan-Boltzmann law. And the constant sigma is called Stefan-Boltzmann constant. Its value in SI units is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt meter minus 2 Kelvin minus 4. निकाल लोगे ना ये यूनिट फॉर्मूला में पुट करके। Most bodies emit only a fraction of the rate given by equation 11.16, मतलब इसका कुछ ही पार्ट इमिट कर पाते हैं, बाकी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। A substance like lamp black comes close to the limit, मतलब सबसे ज़्यादा इमिशन ये लैम्प ब्लैक की करता है। लैम्प ब्लैक कुछ नहीं होता, सूत होता है, सूत। कभी दिए को आप जलाते हो ना कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो काला काला जो सब्सटेंस होता है वही लैम्प ब्लैक होता है। One therefore defines a dimensionless fraction E called emissivity and writes H is equal to A emissivity sigma T का power 4. Here E is 1 for the perfect radiator. For कोई नहीं है perfect radiator. For a tungsten lamp for example E is about 0.4, मतलब वो क्या करता है? 40% ही emit करता है। Thus, a tungsten lamp at a temperature of 3000 Kelvin and the surface area of 0.3 centimeter square radiates at the rate of H is equal to 0.3 into 10 to the power minus 4 into 0.4 into 5.67 into सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो आपका आ गया 60 वॉट। आया आपको? A body at temperature T with surrounding at temperature Ts, अब आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा ना बच्चों, एज वेल एज रिसीव्स एनर्जी। For a perfect radiator, the net rate of loss of radiant energy is H is equal to sigma A T4 minus T surrounding का 4 power 4। क्यों बच्चों ऐसा करना पड़ा?
क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी तो मैटर करेगा ना कि बाहर का टेम्परेचर कितना कम है या ज़्यादा है. फॉर अ बॉडी विद इमिसिविटी ई द रिलेशन मॉडिफाइज टू H इज इक्वल टू ई सिग्मा ए T4 माइनस TS का पावर 4. एज एन एग्जाम्पल लेट अस एस्टिमेट द हीट रेडिएटेड बाय आवर बॉडी. चलो बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं. 37 डिग्री सेंटीग्रेड है आपकी टेम्परेचर बॉडी का और बाहर का टेम्परेचर कम है. सपोज द सरफेस एरिया ऑफ अ पर्सन ऑफ बॉडी इज अबाउट 1.9 मीटर स्क्वायर, है ना, अप्रॉक्सीमेटली है. एंड द रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस. द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एज वी ऑल नो इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. द स्किन टेम्परेचर मे बी 28, है ना. The emissivity of the skin is about 0.97 for the relevant region of electromagnetic radiation. Okay, the rate of heat loss क्या हो जाएगा बच्चों? पुट करो ये सिग्मा की वैल्यू, फिर 1.9 जो है आपका एरिया हो गया बॉडी का, 0.97 जो है आपकी इमिसिविटी है, और ये आपके बॉडी के टेम्परेचर में से आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा. जितनी वैल्यू आएगी ना वही उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी हीट जो है वो इमिट होगी फ्रॉम द बॉडी. तो ये निकल के आती है 66.4 वाट, विच इज़ मोर देन हाफ द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बॉडी एट रेस्ट. तो ये आधी जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना बॉडी में रेस्ट के समय, उसकी आधी से ज़्यादा तो बाहर रेडिएट हो रही है. देख रहे हो बच्चों कितना प्यारा कैलकुलेशन है. टू प्रिवेंट दिस हीट लॉस इफेक्टिवली बेटर देन ऑर्डिनरी क्लोथिंग, हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न आर्कटिक क्लोथिंग हैज़ एन एडिशनल थिन शाइनी मेटेलिक लेयर नेक्स्ट टू द स्किन. उससे क्या होगा बच्चों, वो जो शाइनी मेटेलिक लेयर है ना वो वापस सारी बॉडी की जो रेडिएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस बॉडी में भेज देंगी, ताकि आपकी बॉडी की हीट जो है वो बरकरार रहे. इंडिया की बात नहीं हो रही बच्चों.